Okay, just a second. Yes. So enthalpy changes in solution. We're going to start with enthalpy changes in solution, something that we have studied as a definition back in AS. We're going to revise that, but we're going to this time discuss the details in terms of proper mathematical calculations. जब ionic solid water में dissolve किया जाता है, crystal lattice break हो जाता है, ions separate हो जाते हैं, एक large amount चाहिए energy की overcome करने के लिए attractive forces को या lattice energy को break करने के लिए. Of course, lattice energy जो होती है, lattice energy जो होती है वो हमारे पास काफी बड़ी amount पे होती है, हम इसे huge amount of energy के तौर पे discuss कर चुके हैं. Then they have a question, how does this happen even when the water is not heated? So we are going to answer all of this in this section. Let's start with the definition of enthalpy change of solution. Enthalpy change of solution, delta H naught sol, is the energy absorbed or released when 1 mole of an ionic solid dissolves in sufficient water to form a dilute, very dilute solution. Here, in AS, I gave you the concept about infinite dilution. I hope you remember the concept. हमने enthalpy change of solution को discuss किया था AS में, enthalpy changes वाले chapter में, और वहाँ पर infinite dilution का भी concept दिया था, जिसको यहाँ पर very dilute solution कह रहा है. Of course, our standard is water, and by very dilute solution, they mean to have that there is no more enthalpy change even when we add more water. If you remember, I told you that a generic idea of that is taken as कि हमारे पास अगर 1 mole ionic solid का है, तो water के approximately 80 to 100 moles of water होना एक अच्छा standard है, क्योंकि 101 mole of water पे आपके पास जो enthalpy change होगा वो इतना low होगा कि उसकी वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, नेग्लिजिबल होगी या कैलकुलेटेबल नहीं होगी विदाउट एनी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, यानी कोई खास चेंज नहीं आता होगा. लेकिन बहरहाल वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. आप ये डेफिनेशन पेपर में लिखते हुए 80 मोल्स, 100 मोल्स, इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये सारा कुछ अभी नहीं कोट करेंगे. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेफिनेशन बुक ही कोट करेंगे जो इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है. Means insufficient water, and in order to form a very dilute solution, by this they mean the solution in which there is no absorption or release of energy for 1 mole of solid if any more water is added. See? So in order to discuss that point with a proper example, the example considered over here is magnesium chloride, and the way they write this example is very easy. Let's take a look. Magnesium chloride is solid when added to water, which is simply taken as AQ over here, so that you don't have to go through the balancing. अगर हम यहाँ पे water लिखते तो फिर उसे यहाँ पे balance करते, फिर ये problem होता. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे AQ aqueous लिखते हैं, which represents water, और यहाँ पे simply state symbol उसका solid से change करके aqueous कर देते हैं. This is one of the very easy ways of writing, and in A levels I really admire this effort that you start writing in such a way that the child does not have to go through extra steps of balancing the equation or making the equation more complicated. Okay? So that's very easy. You can write it like this, or you may write it like this. आप इसे जैसे चाहें लिख सकते हैं. आप चाहें तो उन आयंस को इकट्ठा लिख के उसे aqueous बता दें, या चाहें तो उन आयंस को separate लिखते हैं. In both ways, the delta H naught sol will remain the same, which is actually enthalpy change of solution. For NaCl, this value is this and this. Now take a look. These are both salts. These are both chloride salts. And these are both metallic salts. Na represents the group 1 elements and Mg represents group 2 elements. And you'll find out that definition they gave was absorbed or released energy, which means the reaction could be endothermic, hence absorbed, or exothermic, hence released. And both the examples are given over here. In case of MgCl2, the reaction is exothermic. In case of NaCl, the reaction is endothermic. Right? So you would understand that sometimes in order to go through the whole process of dissolving an ionic compound, a solid, into water, may be endothermic or may be exothermic.
So what's the concept that lies behind it? It may release energy upon breaking those ionic compounds or bonds or lattice energy, or it may need some more energy which is taken or absorbed from the environment, hence endothermic. So I hope you understand the concept and you make it a proper imagination about it. Now, few things to note. The symbol for enthalpy change is delta H naught sol. The symbol AQ represents large amount of water. As we don't know the amount of water used, we use it by AQ. Enthalpy changes in solution can be positive, endothermic, like the example of NaCl, or negative, exothermic, like the example of MgCl2. A compound is likely to be soluble in water if delta H naught sol is negative and has a small positive value. Substances with large positive values are relatively insoluble. Now, uh, what does this line mean? What do you understand from reading this line? Would anyone like to explain it? Read this line a couple of times before anyone says that he or she can do it, and then try to do it. Two examples are given on top. You can take those examples, put them according to this sentence, and try to understand the whole thing. So, why don't one of the boys try to explain this sentence? Go ahead. You may make a mistake, that's fine by me. Come on, boys. Ali, Alvan, Ali, Alvan, any one of you among you? सिंपल सर कि बस यही वो कह रहा है कि सर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. Understandable, good. Very good. And what about value relation? Small, positive, negative? सर it depends on the क्या कहते हैं polarizability of the ions. नहीं, अभी पीछे से कनेक्ट ना करें, अभी से सिंपल यही बता दें. गो, आप ठीक कर रहे हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. लेट्स गो विद द इजियर पार्ट फर्स्ट एंड विल रिलेट इट टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आफ्टर. यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि स्मॉल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो कैसा होगा, और लार्ज वैल्यूज हो तो कैसा होगा. Come on, let's try. Alvan. Sir, it is क्या कहते हैं likely to be soluble in water if the value is negative or has a small positive value. सर जिस तरह भी MgCl2 और NaCl की एग्जांपल दी हुई है, और अगर सर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि सर insoluble है, ये लिखा हुआ सर. Very good, very good. Which means both the examples given on top are actually related to the first half of the sentence, and for the second half there is like no example quoted over here, right? अल्वान ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया. हमने इसे इतना ही मतलब फिलहाल लेना था. हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट नॉट येट. ठीक है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अबाउट द वैल्यू एंड द सॉलिबिलिटी. ठीक है. So far we haven't discussed solubility yet. Let me tell you, not all ionic compounds dissolve in water. Some of them are soluble, some of them are not. ठीक है. Here I would like to relate it to your O levels course. अगर आपको O level का कोर्स याद हो तो हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट पढ़ाते हैं आपको, और सॉल्ट्स में एक बाकायदा ऐसा टॉपिक आता है O level या IGCSE में जिसमें हम सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स या प्रेसिपिटेट्स आपको सेपरेट पढ़ाते हैं. फिर उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम आपको करवाते हैं O levels या IGCSE में. आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया हुआ था IGCSE में कि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास कुछ और सॉल्ट्स हैं जिसमें सल्फेट्स में भी आते हैं, जिससे कि कैल्शियम भी कुछ सॉल्ट्स हैं. फिर कार्बोनेट्स आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट को छोड़ के वैसे तो सारे कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं. तो उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं. तो आपको याद होगा हमने आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, एज सम ऑफ देम आर सॉल्युबल एंड सम ऑफ देम आरंट. ठीक. तो हम एंथैल्पी चेंज से कैसे रिलेट करेंगे वो चीज यहाँ पर बताई हुई है. एंड इट्स वेरी इजी. If it's soluble in water, if it has a negative value, no matter how large the negative value is,
or it has a positive value, but that positive value is small. Okay? And we'll call it insoluble if that value is large. For example, let's quote an example over here. Okay? Let me write the example over here. Let's suppose we have some compound X that is present in solid form, and we add a very large amount of water to it, AQ, and that gives us what? X, which is now in aqueous form. And let's consider its H value to be equal to plus 250 kilojoule per mole. And that represents what? That actually represents that this compound has a very large positive value, so probably X is insoluble in water. Okay. Now, back in O levels, we used to think soluble and insoluble. But here in A levels or back in AS, what we tried to do was to define things as soluble, good soluble, rarely soluble, partially soluble. We used words and phrases like this to give you an idea that some substances are easily soluble. Some, however, are insoluble, but nothing is 100% insoluble in the world, as a few of its molecules definitely tend to dissolve. So we can say really soluble or less soluble and more soluble, or we can use these relative terms in order to define it. So relatively insoluble or soluble also depends upon or can be related to the delta H naught Sol value. Clear? Which means if he writes this equation, an equation like this, from just this delta H value, you will be able to tell whether the component is soluble or relatively insoluble, right? Do you? Is that clear for everyone? If you have any questions so far, please ask. Now comes the reasoning part. How can we explain it? Now, as I've previously told you, that if the value is negative, that means when the substance is dissolved in water, the heat is given out. But if the value is positive, it means the reaction is endothermic and heat has to be absorbed from the outside sources, from the atmosphere, from the environment, in order to complete the reaction. But if this value is too big, can we take that amount of heat from simple normal environment? Actually, no, we can't. Until unless the environment is too hot, maybe it's not able to provide this kind of energy, and hence the reaction will not go under normal or room conditions, hence the substance would be insoluble. Do we understand this? If someone doesn't get the point, let me know. Now, in order to understand the whole thing clearly, there is a diagram at the bottom of the page which has to be understood. Now, this diagram explains it very well. I've drawn this diagram many times in my class back in AS, that an ionic compound is actually a lattice, and lattice is attracted by water depending upon what kind of charge of lattice is in front of the water molecule. Now take a look. The positive ions of the lattice are actually attracted by partially negatively charged oxygen atom of water. However, on the other hand, the negative ion of the lattice is attracted by the partially positively charged hydrogen atom of water. What they tend to do is that they take that specific particle out. That particle is then surrounded by water, and water surrounds it in such a way that if the particle is positive, it is surrounded by all of the oxygen atoms of the water, and if it's a negative ion,
then it would be surrounded by all the atoms of hydrogen in water. And then they tend to form new bonds or new set of intermolecular forces, and hence they are dissolved in water. Hence the lattice breaks down, and hence they form more stable structure. Are we all clear? Okay, Yes, sir. good. Then the only name from the chapter of intermolecular forces, let me revise that for you. Back in chapter of intermolecular forces, we discussed a few types of intermolecular forces: dipole-dipole interaction, instantaneous induced dipole interaction, ion dipole interaction, and hydrogen bonding. Out of these, we explained everything except ion dipole interaction. Here you can see the example of ion dipole interaction, and also written over here in figure 19.9 description. This is an ion dipole interaction. The ion comes from the lattice part or the ionic compound, and the dipole is something that was actually a measure of attractive forces in water. So the portions where these partial charges are shown is the dipole part, and the portion with this complete positively charged particle in the center shown by surrounded particles, that positively or negatively charged part is ion. Hence, ion dipole forces. So I hope that's clear for everyone. Yes, sir. Now, let's discuss the terms. Soluble and insoluble are only relative terms. Magnesium carbonate is regarded. सर अभी क्या कर रहे हैं? बेटा पढ़ रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं और हम क्लास में क्या करेंगे. अगर टॉपिक की बात करें तो हम बेटा पेज नंबर 265 पर हैं और टॉपिक है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. और परेशान ना हुआ कर, रिलैक्स रिलैक्स. अगर कुछ रह भी गया है तो कवर हो जाएगा. इतनी एंजाइटी के साथ क्लास में एंटर होते हैं जैसे सारा कोर्स खत्म हो गया. रिलैक्स रहमत, इट्स जस्ट वन हाफ ऑफ द पेज. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो हम जरूर एक्सप्लेन कर देंगे. ये वीडियो हेल्प कर देगी, मैं समझा दूंगा. ठीक है ना. अगर इतने एकदम एंजियस हो जाएंगे तो मे भी अगला पार्ट भी ध्यान से ना समझ पाए. अब जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ वो आप इंडिपेंडेंटली समझ सकते हैं. ठीक है, कोई मसला नहीं है. और मैं कोशिश करूंगा साथ इसमें पिछले पार्ट को भी साथ साथ ऐसे बताता जाऊं कि आपको मुश्किल ना हो. ठीक है. ओके, सो हम राइट हाफ से स्टार्ट करें और टॉप मोस्ट रिटन पोर्शन से स्टार्ट करें. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द राइट हाफ, पेज 265. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो टर्म्स हम कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करके बताती हैं. अगर हम दो कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो एक को सॉल्युबल और एक को सॉल्युबल इनसॉल्युबल इस तरह से कहते हैं जैसा कि इस एग्जांपल में बताया. मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम इनसॉल्युबल कहते हैं बिकॉज सिर्फ 0.6 ग्राम सॉल्ट जो होता है डिसॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में. ठीक है, जबकि उसकी निस्बत अगर हम NaCl को या MgCl2 को सॉल्युबल कहते हैं तो इस वजह से कहते हैं कि इनकी काफी ज्यादा अमाउंट एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाती है पानी में. तो एक्चुअली ये रिलेटिव टर्म्स हैं. किसी चीज की बहुत थोड़ी अमाउंट डिसॉल्व होने पर हम उसे इनसॉल्युबल कह देते हैं और किसी चीज की ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होने पर हम उसे सॉल्युबल कह लेते हैं. तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल कंपैरेटिव या रिलेटिव टर्म्स होंगे और आप इस हिसाब से बात करेंगे. याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी चीज 100% इनसॉल्युबल नहीं होती. कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी चीजों के भी जिन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं. उसी एग्जांपल यहाँ सामने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखी हुई है. ऑल्दो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने अभी बोला, मैंने IGCSE की तरतीब बताते हुए पुरानी रिवीजन कराते हुए बताया कि IGCSE में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने सिंपली इनसॉल्युबल कह दिया था. लेकिन ए लेवल में आके हम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिसॉल्व होता है वाटर में. 1 लीटर वाटर में 0.6 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिसॉल्व होते हैं. लेकिन चूंकि ये अमाउंट बहुत थोड़ी है और कंपैरेटिवली किसी और सॉल्ट के जैसा यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड है ये अमाउंट बहुत ही कम बनती है, तो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को इनसॉल्युबल कह देते हैं जबकि इन दोनों को सॉल्युबल कह देते हैं. तो ये बात करने का अंदाज है रिलेटिव टर्म्स की बुनियाद पे. इसका आपने हरगिज ये मतलब नहीं लेना कि जब हम उसे वाटर में डालेंगे तो उससे कोई भी अमाउंट या कोई भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा ही नहीं. ऐसा नहीं होगा.
ठीक। सो कीप योर कॉन्सेप्ट पॉलिश्ड, इस लेवल के हिसाब से कॉन्सेप्ट रखना है। वो जो बेसिक बचकाना कॉन्सेप्ट है ना कि या तो कोई चीज 100 होती है या कोई चीज 0 होती है और दरमियान में कुछ नहीं होता, ये नहीं करना, ठीक है। ए लेवल्स में आके आपको ये दरमियान को बेशक हम 100 हिस्से तो बेशक ना करें, 10 हिस्से करते हैं आपकी इसके आसानी के लिए, लेकिन वो 10 भी पता होने चाहिए कि बीच में कुछ है। दो एक्सट्रीम्स की बात जो होती है वो बचकाना लेवल पे तो जरूर होती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं, ठीक। मेटालिक सॉल्ट्स एब्सोल्युटली इनसॉल्युबल इन वाटर होते ही नहीं है। इवन लेड कार्बोनेट जिसे हम बहुत इनसॉल्युबल कहते हैं, उसकी भी एक स्मॉल अमाउंट यानी 0.000 आफ्टर 3 zeros there is 17 gram which can dissolve in 1 liter of water। तो अगर सॉल्ट्स कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते तो उनकी डेल्टा एच नॉट सॉल्ट की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती, लेकिन डेल्टा एच नॉट सॉल्ट की वैल्यू बड़ी या छोटी होने का मतलब ये होगा कि सॉल्ट रिलेटिवली तो इनसॉल्युबल है, लेकिन उसकी ये वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, चूंकि अब ये बात मैं पूरी कर चुका हूँ, सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया, एंड आई विल आस्क इट फ्रॉम अली। अली, आप बताएं कि कौन सा बच्चा चला गया? अच्छा, आयशा मौजूद नहीं, आयशा चली गई। ओके, अली आप बताएं कि अगर हम लास्ट लाइन के हिसाब से चले, मैं इसे स्पॉटलाइट में रख रहा हूँ, इफ सॉल्ट्स वर कंप्लीटली इनसॉल्युबल, उनकी वैल्यू ना होती, तो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू तो होती है डेल्टा एच नॉट सॉल्ट की। तो आप कोई ऐसा सॉल्ट जैसे कि लेड कार्बोनेट की बात की जो बहुत थोड़ा डिसॉल्व हो रहा है, तो अली उसकी डेल्टा एच नॉट सॉल्ट की वैल्यू कैसी होगी? उसकी डेल्टा एच नॉट सोल की वैल्यू होगी बहुत पॉजिटिव, मतलब कि एंडोथर्मिक होगी, और वेरी साथ गुड। में एग्जांपल होगी बेरियम क्लोराइड की। नहीं, वो एग्जांपल बेशक कोट ना करें, वैल्यू के बारे में डिस्कस अच्छा, करें। एक तो पॉजिटिव सही होगी और सही सही, दूसरी काफी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब कि राइट। 10 से ज्यादा वेरी गुड, आगे वेरी गुड। काफी। आपके पास वो वैल्यू न सिर्फ पॉजिटिव होगी बल्कि लार्ज पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है, और सॉल्ट जितना इनसॉल्युबल होता जाएगा, जितना इनसॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। विच मीन्स रोमा, अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, देखें यहाँ पर MgCl और NaCl का कंपैरिजन तो आप इजीली कर सकते हैं इस तरतीब से। अब आते हैं ये वर्ड्स वाले पोर्शन पे। यहाँ पे दो सॉल्ट्स लिखे हुए हैं, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है जिसके 0.6 ग्राम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और एक लेड कार्बोनेट है जिसके 0.00017 ग्राम्स 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इन दोनों में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी? रोमा? सर मैग्नीशियम की, जस्ट अ मैग्नीशियम सेकंड कार्बोनेट। अलवान, मैग्नीशियम कार्बोनेट की या लेड कार्बोनेट की? आंसर आपकी आवाज बताना कट था रही थी सर तो मैंने। मुझे नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड अलवान, एक सेकंड, मुझे रोमा से पूछ लेते फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आपको इस वक्त आंसर आता है। अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेड कार्बोनेट, मुझे सुना नहीं आपने क्या कहा, आवाज कटी। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट। और लेड की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, इसका मतलब है? सर वो तो डिसॉल्व ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो जो डिसॉल्व नहीं होता उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अब इसका मतलब है आपको नहीं समझ आया तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं जी। लेट्स आस्क द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अलवान। अलवान क्लैरिफाई करना चाहेंगे। अलवान सर अच्छी तरह से समझाना सर है, क्योंकि सारों को समझ आए। सर क्योंकि लेड जो है वो आपने बताया कि उसको ज्यादा लेड का वो होता है, मुश्किल से डिसॉल्व होता है, तो सर उसकी जो करेक्ट। होगी ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो ज्यादा इनसॉल्युबल है, और जो सॉल्युबल है उसके सर नेगेटिव के अंदर होगी। अच्छा अच्छा, अब ये दोनों ही इनसॉल्युबल हैं एक्चुअली। जी सर। तो सर अब वो आप अगर जो ज्यादा एग्जैक्टली लेड को तो बता इंसॉल्युबल है, चुके हैं, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक्सप्लेन करें। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो भी सर क्या कहते हैं पॉजिटिव, अगर आप कह रहे हैं इंसॉल्युबल तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी सर कम उसकी क्या कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू होगी वेरी गुड, कंपैरिजन टू लेड। वेरी गुड, वेरी वेल डन अलवान, आई रियली अप्रिशिएट इट। रोमा, पहली चीज तो ये कि दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों ही इंसॉल्युबिलिटी के करीब है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, इन दोनों में से लेड कार्बोनेट की वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा बड़ी होगी, लार्जर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंसॉल्युबिलिटी कंटेंट ज्यादा है, उसका सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, 0.000 के बाद 17 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है।
और मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू भी लार्ज होगी, बट व्हेन कंपेयर टू लेड कार्बोनेट उससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन होगी ये भी पॉजिटिव, होगी ये भी लार्ज। ठीक, तो इसका मतलब है Yes, sir. कोई भी ऐसी चीज जिसकी बहुत थोड़ी अमाउंट डिसॉल्व होती है वाटर में, इतनी थोड़ी कि हम उसे इनसॉल्युबल कह देते हैं अपनी आम लैंग्वेज में, ये आसान करने के लिए छोटे लेवल पे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए लेवल्स में उसकी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों की, तीनों की, जितनी भी चीजें आप कंपेयर कर रहे हैं। बस फर्क ये हुआ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट थोड़ी सी लेस लार्जली पॉजिटिव होगा और लेड कार्बोनेट थोड़ा मोर लार्जली पॉजिटिव होगा, ये फर्क आ जाएगा। ठीक, होंगे दोनों पॉजिटिव और होंगे दोनों लार्ज। बात क्लियर हो गई अब? Yes, sir. हाँ, तो इस अंदाज में हमने चीजों को देखना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, वो जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वो बहुत इजीली सॉल्युबल होता है, तो उसके लिए इनसॉल्युबल का वर्ड इस्तेमाल करना किसी लिहाज से ठीक है ही नहीं। नेगेटिव वाला वैसे ही सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल होता है, अच्छी अमाउंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट्स क्लियर करता चला जाऊं ताकि आप लोगों को, बच्चों को पता चल जाए। आपको यहाँ पर इनसॉल्युबल के लिए अमाउंट्स लिखी हुई हैं तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है। मसलन लेड कार्बोनेट के लिए अमाउंट 0 पॉइंट जितनी भी 17 ग्राम्स के हिसाब से दी हुई है, ढेर सारे जीरोस के बाद, या मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.6 ग्राम दी हुई है। लेट मी टेल यू, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर हो तो NaCl के 37 ग्राम्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाजा हुआ कि NaCl सॉल्युबल है। और MgCl की अगर बात की जाए तो वो NaCl से भी ज्यादा सॉल्युबल है। इस हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया है, इसके 56 ग्राम्स डिसॉल्व होते थे, ठीक है ना। और हमारे पास इससे ज्यादा डिसॉल्व होने वाली चीजें भी पड़ी हैं, बस KCl इन दोनों से ज्यादा डिसॉल्व होता है। ये KNO3, जितने कंपाउंड अभी तक हमने डिस्कस किए, KNO3 इन सारों में सबसे ज्यादा डिसॉल्व होता है। KNO3 की आई थिंक वैल्यू जाती है 70s या 80s में इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं तो KNO3 क्विकली जंप करेगा 100 में, उसकी वैल्यू 250 ग्राम पर 1 लीटर ऑफ वाटर तक चली जाएगी, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। तो सॉल्युबल कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए वैल्यूज पर 1 लीटर ऑफ वाटर ग्राम्स में काफी ज्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू इनसॉल्युबल वंस। बट सॉल्युबल की वैल्यूज ज्यादातर लार्जली नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव हो तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। पॉजिटिव होने का मतलब है वो एंडोथर्मिक तो है लेकिन स्लाइटली, लेकिन लार्ज पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल के लिए होगा। उसमें भी हम आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल्स हमने कंसीडर कर ली। क्या क्लियर हो गई? Yes. ओके, आगे मूव करते हैं। एक सेकेंड, कम ऑन। सो लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड इज -787। हमारे पास पीछे दिया हुआ था, यहाँ पर -788 दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्होंने जानबूझ के एक बुक में ही दो तरह की वैल्यूज इसलिए लिखी हुई हैं कि दोनों वैल्यूज डिस्कस होती हैं बुक्स में और दोनों कोट की जाती हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली साइकिल से इसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों वैल्यूज कोट करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद -787 और -788 किलो जूल पर मोल, ठीक। दिस मींस कि हमें इतनी एनर्जी एटलीस्ट सप्लाई करनी है ताकि हम इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करें और NaCl के पूरे लैटिस को ब्रेक कर सकें, ठीक है। सो डेल्टा H नॉट सोल NaCl के लिए सिर्फ +3.9 है। अब इसका क्या मतलब है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? अभी जैसे मैंने बताया ये एनर्जी सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से आ रही होती है। तो सराउंडिंग क्या होता है सॉल्ट के? जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सराउंडिंग उसके सारे वाटर होता है। तो ये जो एनर्जी होती है ये वाटर से आ रही होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वाटर एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रहा हो, लेकिन स्टार्ट इनिशियल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल से आ रही होती है। और ये एनर्जी जो होती है ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है फॉर दैट लैटिस। और इसको नीचे वाले डायग्राम में भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ये जो डायग्राम नीचे दिखाई हुई है, जिससे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको लास्ट पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेन करता है। जब आयनिक सॉलिड डिसॉल्व होता है वाटर में, बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आयंस के दरमियान, इन्हें आयन डाइपोल बॉन्ड्स कहेंगे। वाटर पोलर होता है। ये जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव आयंस आयनिक कंपाउंड की। इस केस में ये वाले पॉजिटिव आयंस हमारे पास शो हुए हैं, ठीक है।
और उसी तरह से फिर हमारे पास जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, वो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव एटम्स, जैसे यहाँ पर शो हुए हैं और ये सराउंड हुआ है। तो ये हमारे पास डिसोल्यूशन का या किसी चीज को डिसॉल्व करने का प्रोसेस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लैटिस एनर्जी या हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हाइड्रेशन भी है। किसी चीज का वाटर के अंदर जाके ब्रेक हो जाना, उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इन्वॉल्व है, और अब हम उसे स्टडी करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी जो आयन डाइपोल बॉन्ड्स को बनाने से रिलीज होती है, वो सफिशिएंट होती है कॉम्पनसेट करने के लिए उस एनर्जी के जो एनाइंस और कैटाइंस को सेपरेट करने के लिए चाहिए होती है। इसका मतलब है कि नए बॉन्ड्स बनाने से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि और पुराने बॉन्ड्स तोड़े जा सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से समझें। जैसे ही हम कोई सेकेंड हाँ, जैसे ही हम कोई एक आयनिक सिस्टम, यानी लेट्स सपोज नमक पानी में डाला, तो क्या होगा कि वो जो नमक जो सबसे आउटर मोस्ट साइड पे होगा, वाटर के साथ बिहेव कर रहा होगा, उसमें एक एक करके आयंस तोड़ेंगे, लैटिस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव आयन टूटा और इसको इस तरह से सराउंड किया गया, और यहाँ से एक ही पॉजिटिव टूटा और इसको इस तरह से सराउंड किया गया। जब इनको सराउंड करके ये नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये भी एनर्जी रिलीज करेंगे और इनको टूटने से ये भी एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ से फर्दर आयंस को ब्रेक करने के काम आएगी। Hence that energy is plus 3.9 किलोजूल पर मोल, जो कि हमें सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लैटिस से सिर्फ चंद एक जो है ना चार्जेस को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं, तो उसी से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि फिर बाकी लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो स्लोली एंटायर लैटिस को ब्रेक करने में हेल्प कर सके। आई होप ये बात सबको समझ आती हो। नहीं समझ आई तो अभी पूछ लें, ताकि इससे पहले कि मैं आगे जाऊं ये छोटा सा इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस सर। ओके गुड। सो इस तरह से कैटाइंस और एनाइंस सेपरेट होंगे जो कि बॉन्डेड थे क्रिस्टल लैटिस में, और जो काफी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज करके बॉन्डिंग पे आए थे। ये जो एनर्जी रिलीज होगी जब गैसियस आयंस डिसॉल्व होंगे वाटर में, इसे हम एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कह रहे हैं। अब एक ही वो डिसॉल्विंग का प्रोसेस है और उसमें एक तरह की नहीं, काफी तरह की एंथैल्पीज इन्वॉल्व है। तो हम वो सारी एंथैल्पीज पहले डिफाइन करें, फिर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आयनिक सॉलिड बनते हुए लैटिस एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है। अब उसे वाटर में डिसॉल्व करते वक्त हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन देखना पड़ी, और जब वो डिसॉल्व होकर नए आयन डाइपोल बॉन्ड्स बने, तो जो एनर्जी रिलीज हुई एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है। तो हर स्टेप पे जो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज हो रही है, अगर हम उसे सेपरेट कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप कर भी रहे हैं। इसी तरतीब में हमारे पास फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन आता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एच नॉट हाइड, ठीक है। ये एंथैल्पी चेंज है जब 1 मोल स्पेसिफाइड गैसियस आयंस का डिसॉल्व हो जाएगा सफिशिएंट वाटर में कि वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ना ले, तो हम इसे हाइड्रेशन कहेंगे। अब आपको ये डेफिनेशन जो है वो सॉल्यूशन वाली डेफिनेशन से बड़ी मिलती जुलती लगेगी। क्यों? देखें, अगर तो डेल्टा एच नॉट आ गया तो यहाँ पे 1 मोल स्पेसिफाई होना मस्ट है। दूसरा, वहां पर भी हमारे पास सफिशिएंट वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन थी, यहाँ पर भी सफिशिएंट वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन है, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बस फर्क इतना है कि जो 1 मोल डिफाइन हुआ है वहां पे आयनिक कंपाउंड का था, और यहाँ पे स्पेसिफाइड गैसियस आयंस का है जो डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये छोटे से चेंज के साथ हम एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन को बाइफरकेट कर सकते हैं। If you have a question against this definition, let me know. Alright, हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, हम गैप लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। एंथैल्पी चेंज हाइड्रेशन के लिए कैल्शियम आयंस या क्लोराइड आयंस की इस तरह से होगी कि दोनों की हाइड्रेशन फिर अलग-अलग शो होगी। हाइड्रेशन में ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक आयन को लेकर उसकी हाइड्रेशन सेपरेट बताते हैं। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो 2 आयन से बना होता है, कैटाइंस और एनाइंस। तो जब हम हीट ऑफ हाइड्रेशन पे या एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन पे आएंगे, तो कैटाइंस की अलहदा नोट करेंगे और एनाइंस की अलहदा नोट करेंगे, और आयन के अपने ऊपर डिपेंड करता होगा कि उसकी एनर्जी कितनी है। और ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं।
यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जो भी अभी अल्वान यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहा था, और हाँ उसको देखते हुए ही हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन रखनी है। तो इसके जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो हम वापस आके करते हैं, वो हम अभी नहीं करेंगे वरना वो बीच में इंटरप्ट हो जाएंगे। सो टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, आप ब्रेक ले लें और मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो? नो सर। ऑलराइट, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, सी यू आफ्टर 5 minutes.